پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی اپنی 2 اسمبلیاں توڑ کر الیکشن میں جائے گی۔ گورنر نے 2 دن میں اسمبلی نہ توڑی تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اب پاکستان کو قومی انتخابات کی طرف بڑھانا چاہیے۔ سندھ کی سیاست میں خوشگوار تبدیلی، متحدہ پھر متحد۔ ایم کیو ایم کے تمام دڑے ایک ہو گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے پرانے ساتھیوں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے دوبارہ سے ایک ساتھ سیاسی جدوجہد شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا پارٹیوں کو ایم کیو ایم میں ضم کرنے کا اعلان۔ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں گزشتہ 5 سال سے سندھ کے عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ 5 سال میں ایم کیو ایم منتشر رہی، حالات بد سے بدتر ہوئے۔ ان حالات میں آواز سے آواز ملانے کی ضرورت ہے۔ 14 اگست کو ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا، کوئی ذاتی رنجش یا جھگڑا نہیں تھا۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 3 مارچ 2016 کو اپنی قوم کی بقا کے لیے جو مناسب لگا وہ کیا۔ اس شہر کو اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ آصف علی زرداری اس پر قبضہ کر لے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں دستوں گریباں ہیں۔ موجودہ سیاسی اور معاشی بحران میں ایم کیو ایم ہی امید کی کرن ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں ایم کیو ایم کی تقسیم زہر قاتل تھی، اختلاف کو ایک طرف رکھ کر متحد ہوئے ہیں۔ ہمارا عمل بتائے گا ہم کیوں جمع ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کے قرضے کو مؤخر اور پاکستان کے لیے $1 ارب اضافی قرض کی منظوری دے دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقاتیں۔ پاک برطانیہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 90 لاکھ پاؤنڈز کی اضافی مدد کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں مخصوص نشستوں پر انتخابات کے لیے شیڈول جاری۔ کاغذات نامزدگی 18 سے 19 جنوری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ 20 جنوری کو کاغذات کی جانچ پڑتال اور اسکروٹنی کی جائے گی۔ 21 سے 23 جنوری تک کاغذات نامزدگی کی مستردگی کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے نان پائی ایسوسی ایشن کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ روٹی $1 مہنگی، نان کی قیمت $22 برقرار۔ نان پائی ایسوسی ایشن کا حکومت سے روٹی 25 اور نان $35 کرنے کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ اور نان پائی ایسوسی ایشن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ اور وزارت ریلوے نے مالی خسارے سے بچنے کے لیے ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معاشی خسارے کو کم کرنے کے لیے اسکرپ کی فروخت سمیت اہم اقدامات زیر غور۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور کراچی کے ریلوے جنگنج کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم شیخ اور میں ہوں احمد بلال ماج۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی اپنی 2 اسمبلیاں توڑ کر الیکشن میں جائے گی۔ گورنر نے 2 دن میں اسمبلی نہ توڑی تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو 48 گھنٹوں میں خط لکھ کر عبوری حکومت بنانے کا کہیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اب پاکستان کو قومی انتخابات کی طرف بڑھانا چاہیے۔
जी बिल्कुल, अहम खबर से आपको आगाह करें। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फवाद चौधरी जो है वो कहते हैं कि पीटीआई अपनी 2 असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। गवर्नर ने 2 दिन में असेंबली ना तोड़ी तो असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी। अपोजिशन लीडर हमदा शहबाज को 48 घंटों में खत लिखकर अबूरी हुकूमत बनाने का कहेंगे। आपको बताते चले, परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई से। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा, असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब की सियासत फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई। रात गए वजीर आला की तरफ से एतमाद का वोट लेने के बाद जमान पार्क सियासी निगाहों का मरकज बना रहा। चौधरी परवेज इलाही ने जमान पार्क में इमरान खान के साथ मुलाकात की। मुलाकात में आज ही असेंबली तहलील करने का फैसला किया गया, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भिजवा दिया गया और वाजिया रहे कि इससे कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत ने भी पंजाब असेंबली फौरी तहलील करने की राय दी थी। ताहम इसका हतमी फैसला वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान जारी मुलाकात में किया गया। जराये के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत ने असेंबली फौरी तहलील करने का कहा है। इजलास में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने इत्मीनान का वोट लिया है, अब असेंबली को तहरीक करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। वजीर आला की तरफ से भिजवाई जाने वाली समरी के हवाले से गवर्नर हाउस में जब हमारे जराये से बात हुई तो ऐसी उनका कहना है कि ऐसी कोई समरी मसूल नहीं हुई। यहाँ मैं आपको ये भी बताता कि जराये के मुताबिक अगर गवर्नर जी शहबाज, ये बताइएगा कि गवर्नर असेंबली खुद तोड़ेंगे, आपको क्या लगता है इस बारे से? नहीं, इसमें जो जराये का कहना है कि अभी जो मामलात हैं, जो अता तारड़ से भी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी हमें ये समरी मसूल होने के बाद हम इस पर लाएअमल का मशवरा, क्योंकि इसमें 48 आवर्स जो है 48 घंटे का वक्त दरकार होता है। अगर इस पर साइन ना भी किए जाएं तो असेंबली जो है खुद ब खुद तहलील हो जाती है। जी ठीक हो गया। जी शहबाज, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की तहरीक कामयाब होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली की तहलील का मामला लटक गया। अपोजिशन ने रकावट खड़ी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील अपोजिशन की जानिब से रेक्यूजेशन जमा होने पर फौरी मुमकिन नहीं। रेक्यूजेशन पर 42 अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद हैं। रेक्यूजेशन जमा होने के बाद स्पीकर 14 दिन के अंदर असेंबली इजलास बुलाने के पाबंद हैं। सेक्रेटरी असेंबली ने बताया कि फौतशुदा मेंबर के दस्तखत से रेक्यूजेशन मुतासिर नहीं होगी। रेक्यूजेशन पर दीगर मेंबरान के दस्तखत मैच न करने से भी मसला नहीं बनेगा। सेक्रेटरी असेंबली ने मजीद कहा कि आइंदा हफ्ते में असेंबली इजलास तलब किया जाना मुतवक्किल है। आईनी माहिरीन का भी कहना है कि रेक्यूजेशन जमा होने के बाद असेंबली तहलील नहीं की जा सकती। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने एतमाद के वोट के दौरान विफाकी अदारों के इस्तेमाल का सख्त नोटिस लेते हुए विफाकी अदारे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि लीगी रहनुमाओं और विफाकी हुकूमत के ओहदेदारों ने किस कानून के तहत जियो फिक्सिंग करवाई है। राना सनाउल्लाह अता तारड़ ने FIA के जरिए अरकान की जियो फिक्सिंग का एतराफ किया। पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई के लिए कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया है। एतमाद के वोट के दौरान विफाकी इदारों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि असेंबली तहलील करने पर फैसला हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। हमें पता था कि हमारे बंदे पूरे हो चुके हैं। जो चुन मुने आए हुए थे, इनको सरप्राइज मिला है। इन्होंने कहा कि ये जूते छोड़कर भागना चाह रहे हैं, ये अवाम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। हम इसलिए हर जगह जीत रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। हम ये लड़ाई अवाम की हमायत से लड़ रहे हैं। हमने राना सनाउल्लाह और अता उल्ला तारड़ को सुकून और अदवायात देकर भेजा है। इन दो चमचों और आसिफ जरदारी को नींद नहीं आ रही।
फवाद चौधरी का कहना था कि मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब असम्बली तहलील हो जानी है, इसका कोई फायदा नहीं। ये बेशरम लोग हैं, इनको अवाम से जूते पड़ेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने 22 दिसंबर को वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने का ऑर्डर वापस ले लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट लेने का ऑर्डर पूरा किया। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 130 की सब क्लॉज 7 के तहत मेरे दिए ऑर्डर की तामीर की। मैं अपने 22 दिसंबर को जारी किए ऑर्डर को वापस लेता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अलहदा होने वाले धड़ों ने इंतजाम कर लिया। मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमी पार्टी और फारूक सत्तार ने तंजीम बहाली कमेटी को MQM पाकिस्तान में जब्त करने और खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में काम करने का ऐलान किया। MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादराबाद से मुत्तसिल पार्क में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार समेत दीगर कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अलहदा होने वाले धड़ों ने इंतजाम कर लिया है। मुस्तफा कमाल ने पाक सर जमीन पार्टी और फारूक सत्तार ने तंजीम बहाली कमेटी को MQM पाकिस्तान में जम करने और खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में काम करने का ऐलान किया है। MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादराबाद से मुतसल पार्क में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार समेत दीगर कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची सैयद सजाद अली शाह से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आज जो है वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया और तमाम धड़ों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने में कामयाब हो गए। फारूक सत्तार तंजीम बहाली कमेटी खत्म कर चुके और उन्होंने बाकायदा इंजमाम का ऐलान कर दिया। PSP के मुस्तफा कमाल ने बाकायदा तौर पे PSP के इंजमाम का ऐलान कर दिया और इस तरह ही तमाम एक पेज पे आ गए। जी बिल्कुल। सजाद, ये भी बताइएगा कि ये लोग अब अगला लायहा अमल क्या तैयार करेंगे? आपको क्या तासुरात नजर आ रहे हैं इनके? जी बिल्कुल, 15 तारीख को चूंकि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन हमें ये देखने में आ रहा है कि इनका मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो है वो पूरा जो है इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और 15 तारीख को बाकायदा तौर पे इलेक्शन मुअत्तल कराने के लिए सरगर्म है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। और जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी तैयारियों में नजर आ रही है। तो बल्दियाती हल्कों में जो जोर शोर का कैंपेन चल रही है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जानिब से रवां दवा है, कोई नहीं रोकी गई है, लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से कोई कैंपेन नजर नहीं आ रहा है इलाकाई तौर पर। जी ठीक है सजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा 5 साल से सिंध की आवाम का इस्तेहसार किया जा रहा है। दास्तान 50 साल पुरानी है। 5 साल में MQM मुंतशिर रही, हालात बद से बदतर हुए। इन हालात में आवाज से आवाज मिलाने की जरूरत थी। कौमी जिदोजहद में मिलकर हम सब हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। अवामी जलसों में ये अपील करती रही है और दावत देती रही है कि हालात संगीन से संगीनतर हो रहे हैं। हम सबको उसकी संगीनी का एहसास है और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज में आवाज मिलाएं और सिंध के शहरी इलाके जहां पर गो के पूरा पाकिस्तान बसता है, कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान के हर इलाके के लोग, हर जबान बोलने वाले, हर मसला और फिक्र से ताल्लुक रखने वाले इस छोटे से पाकिस्तान में बसते हैं। लेकिन यहां पर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, फिर महज पाकिस्तान के खातिर हिजरत की, उनकी औलादे खास तौर पर यहां पे रहती थी और हम ये समझते थे पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद के पूरा करने के लिए वो लोग
जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, उन पे ही पाकिस्तान को बचाने, पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और जरूरत इस बात की कि उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जा सके ताकि वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ सके, जद्दोजहद कर सके। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस हालात में हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और हमारी इस अपील पर और इस दावत शमूलियत पर और शराकत पर तमाम लोगों ने आपस में खास तौर पे जो नया मरहला शुरू हुआ था, जिसके जरिए सिंध के शहरी इलाकों को, खास तौर पे कराची को, जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का इस्तेहकाम जिसके साथ वाबस्ता है, उसके असल वारिसों से छीनने का कि जो साजिश और मंसूबा बनाया गया था, उसको रोकने और उसको नाकाम बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और आवाज बुलंद करने की जो जरूरत थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ये मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग लाई हैं। और मैं यहां पर पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई, सदर अनीस कायम खानी भाई, उनके रुफका, उनके साथी, उनके कारकुनान और फारूक सत्तार भाई और उनके साथ जो साथी उनके रुफका थे, यहां पर आए हैं और बहुत से ख्वाब और बहुत सी उम्मीद और बहुत से यकीन। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करें पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में अहम दिन के तौर पर लिखा जाएगा। 14 अगस्त को MQM छोड़कर गया, कोई जाती रंजिश या लड़ाई नहीं थी। इस शहर को इसलिए आजाद नहीं करवाया था कि आसिफ अली जरदारी इस पर कब्जा कर ले। आसिफ अली जरदारी अपने वजीरों को समझाएं, कराची को मुखालिफ करके बिलावल को वजीर आजम नहीं बना सकते। समझ में आने वाले फैसले किए, यहाँ से जिस चीज की लोगों को उम्मीद नहीं, सोच नहीं थी, हमने वो काम करके दिखाए। 14 अगस्त 2013 को मैं अल्ताफ हुसैन साहब की MQM छोड़कर गया। राब्ता कमेटी का मेंबर था, पाकिस्तान का सेनेटर था। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कुछ उन्होंने हमसे नहीं लिया था। जो कुछ बढ़ता था हमें मिलती थी वो चीज। कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, कोई जाती लड़ाई नहीं थी, कोई जाती रंजिश नहीं थी। अक्टूबर 2013 को अनीस कायम खानी साहब राब्ता कमेटी के मेंबर थे, छोड़कर चले गए। 3 सालों तक हमने कोई बयान, कोई आवाज, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। 3 मार्च 2016 को मैं और अनीस कायम खानी साहब यहां पर आए हैं और हमने जो कुछ कहा है, जो बगावत की है, वो बबांगे दोहल की। ना समझ में आने वाली बात, जिस वक्त सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हम उस वक्त आकर यहां पर हमने जो कहा वो हमने कहा। क्यों? मेरा कोई भाई नहीं मर रहा था, मेरा कोई भाई लापता नहीं था, शोदा कब्रिस्तान में मेरे किसी भाई की लाश नहीं जा रही थी। रोजाना पाकिस्तान की रियासत को गालियां बकी जा रही थी, पाकिस्तान की फौज को गाली बकी जा रही थी,
नरेंद्र मोदी को आवाज लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी अपनी सरहदें खोलो और हमें सियासी पनाह दो। माओ को, बहनों को बिठाकर कैमरे लगाकर ये बताया जा रहा था कि बायोलॉजिकली जो है वो बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, और नाम था मुहाजिरों के वो बाबा कौम। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने सिंधी होने पे, बलोच होने पे, पंजाबी होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन ये वो दौर था जब रोजाना हर तीसरे दिन शोधा कब्रिस्तान में झंडे में लपेट कर लाश जाती थी। माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिरती थी शहर में। हमने आकर आवाज लगाई रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, कि ये जो साहब रोजाना बैठकर मुहाजिरों का नाम लेकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं बिंगे मुहाजिर इनसे बगावत करता हूं। मैं बिंगे मुहाजिर ये कहता हूं कि ये मुहाजिरों की बात नहीं है, और सिर्फ उनके कहे हुए को तमाम मुहाजिरों को उसकी सजा ना दी जाए। वो गाली बके वहां से बैठकर यहां पर सैकड़ों लड़का रोजाना उड़ जाए, रेंजर्स आ जाए, पुलिस ले जाए, कोई भी वाकया हो शहर में, उसका इल्जाम किसी भी एमक्यूएम के जिम्मेदार पे लगा दो, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस पर यकीन करता है। तो उनकी जिंदगी में ये आवाज लगनी चाहिए थी मुहाजिरों के दरमियान से। इसलिए हमने जो सही समझा अपनी कौम के लिए, अपनी जान को हथेली पे डालकर हमने 3 मार्च 2016 किया, अपनी जात के लिए नहीं किया। आगे बढ़े, आपको बताएं डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान में एमक्यूएम उम्मीद की किरण है। सियासी जमातें दस्तो गिरबां हैं, हमारा अमल बताएगा हम क्यों जमा हुए। जिनीवा से 10 अरब डॉलर की इमदाद हमारी गैरत पर सवाल है। मौका दिया जाए तो अकेला कराची 10 अरब डॉलर कमा कर दे सकता है। आज एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक एमक्यूएम का आगाज कर रहे हैं। रख के आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए हवा का ताजा झोंका है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। मकसद क्या है कि जो कराची का बिलखुसूस कौमी किरदार रहा है, अगर हम ये दावा करते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी है, यहाँ हर इलाके का पाकिस्तानी है, तो जो मुझे नजर आ रहा है बड़ी सियासी जमातों का रवैया कि जिस तरह दस्तो गरेबान है, जिस तरह उन्होंने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, चाहे आप पंजाब को देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है नहीं लेना है, अदालतें बीच में कूद गई हैं। जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया, तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। खुदा की कसम, कराची और एमक्यूएम जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की सियासी जमात है, उसे अगर मौका दिया जाए इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम की तश्कील का, कौम साजी का, तो ये 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। किसी और का दस्ते नगर आपको बनने की जरूरत ही नहीं है। हम उस कमी को इंशाअल्लाह ताला पूरा कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए, हम क्यों यकजा हो रहे हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा। हमें अपने माजी को डिग नहीं करना। हमने जो माजी में अमल किया, सही किया, गलत किया, उसका हमें जवाब भी नहीं देना। आज जिस सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे साथी अगर आज भी अगर
کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو ایم بنانی ہے, ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم, ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم, ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی, جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر, ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے, مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا, ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا, اس کی لیگیسی سے الگ کیا, اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی, تہذیب یافتہ لوگوں کی, نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. اور متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کے قرضے کو مؤخر اور پاکستان کے لیے $1 ارب اضافی قرض کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی. صدر یو اے ای نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نے برادر ملک میں مدعو کرنے پر شیخ محمد بن زید سے اظہار تشکر کیا. ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے قرضے کو مؤخر کر دیا اور $1 ارب کا اضافی قرض فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی. اس موقع پر تجارت, سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا بھی احاطہ کیا گیا. امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک جسم اور 2 قلب ہیں. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس سے ملاقات کی. ریاض میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کہا کہ اسلام مساوات, رواداری اور امن کا درس دیتا ہے. اسلام میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں. پاکستان امت مسلمہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ خطے میں قیام میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس کا کہنا تھا کہ حج 2023 کے لیے عازمین کی تعداد حد ختم کر دی گئی ہے. اب انشاءاللہ حج کورونا سے پہلے کی طرح ہوگا. اس سال عازمین حج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوگی. مسلمانوں کی عملی رہنمائی کے لیے علماء کرام کو اپنے عمل اور کردار میں خود کو نمونہ بنانا چاہیے. ملاقات کے دوران سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے کہا کہ رواں سال حج سیزن میں کورونا پابندیوں کا خاتمہ خوش آئند ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے چینی سفیر نونگ رونگ کی برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنلز نے الوداعی ملاقات کی. پاک برطانیہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 90 لاکھ پاؤنڈز کی اضافی امداد کے اعلان پر شکریہ ادا کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی کے اقدامات کو سراہا. وزیر خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے چینی سفیر نونگ رونگ نے بھی ملاقات کی. انہوں نے وزارت خارجہ میں الوداعی ملاقات کی. اس دوران 2 طرفہ تعلقات, سی پیک منصوبے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ نے پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے چینی سفیر کی خدمات کو سراہا. اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے چینی سفیر نونگ رونگ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے. اور آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات 2022 کے بعد مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کر دیا ہے. سیکریٹری الیکشن کمیشن محمد غضنفر خان کا کہنا ہے کہ مختلف کونسلز میں خواتین, یوتھ اور کسانوں کی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی 18 سے 19 جنوری 2023 3 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے.
शेड्यूल के मुताबिक 20 जनवरी को इन कागजात की जांच पड़ताल और स्क्रूटनी की जाएगी। 21 से 23 जनवरी तक कागजात नामजदगी की मुस्तरदगी के खिलाफ ट्रिब्यूनल के पास अपीलें दायर की जा सकती हैं। 24 और 26 जनवरी को इन अपीलों पर फैसले दिए जाएंगे। 27 जनवरी को दिन 2 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 27 जनवरी दिन 2 बजे के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महसूस नशिस्तों पर 1 फरवरी 2023 को दिन 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पोलिंग होगी। जिला इंतजामिया लाहौर ने नान बाई एसोसिएशन का मुतालबा मुस्तरद करते हुए रोटी की कीमत में 1 रुपए इजाफा जबकि नान की कीमत 22 रुपए पर बरकरार रखी। नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमत से रोटी 25 और नान 35 रुपए करने का मुतालबा कर रखा है। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में 1 रुपए इजाफे का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन रोटी 20 और नान 35 रुपए का किए जाने पर बजिद हो गई, जिस पर जिला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि तनवीर और तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया तो क्रैकडाउन होगा। रोटी की कीमत 14 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई है। 2 माह पहले रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए की गई थी, अब मजीद 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। नान बाई एसोसिएशन ने 2 रोज के लिए अपना एहतजाज मौखिर कर दिया है। नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल का कहना है कि आटे और फाइन मैदे की कीमत कम न हुई तो रोटी 25 नान 35 का अस खुद बेचेंगे। और अब आपको बताएं कि बहावलपुर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी। गोश्त का रेट 600 से 650 तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात आपको बता रहे हैं फजल जावेद खान अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि एशिया खुर्दनोश की कीमतें पहले ही आसमान तक पहुंच गई हैं। गरीब आदमी हफ्ते में एक दिन मुर्गी का गोश्त पका लेता था, अब मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। बहावलपुर के शहरियों ने कोई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। उसके बाद इस वक्त हालात ये हैं कि जो मुर्गी का गोश्त था गरीब और एक आम आदमी की पहुंच में, वो भी उससे दूर होता चला गया है कि 600 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त सिर्फ लोग देख सकते हैं, इस वक्त अपने घर बच्चों को गोश्त नहीं खिला सकते। तो इस वक्त हर चीज जो है वो आसमानों को छू रही है, उसके रेट जो है वो आसमानों तक पहुंचे हुए हैं। सब्जी, अब मुर्गी और सब्जी बचती है गरीब के लिए, वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। तो कहाँ जाए अवाम, कहाँ जाए ये गरीब अवाम, कहाँ जाए? तो इस वक्त जो है वो मुल्क में बिल्कुल कोई जो है ना कंट्रोल नहीं है, जिलाई सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी, पूरे मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं है। रोज जरूरियात जिंदगी की चीजें महंगाई की तरफ जा रही हैं। तमाम चीज़ों का रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, गरीब की पहुंच से दूर है। अगर हम खाने पीने की तरफ देखें तो आटा है, चीनी, घी या प्याज, सब्जी की तरफ देखें तो प्याज है या गोश्त है, वो उनका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, गरीब उसको ले भी नहीं सकता। इवन कि अगर हम मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी 600 से 650 रुपये किलो है। आप जो गरीब लोग हैं वो इसे अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो अच्छे तबके के लोग हैं वो तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही, इसमें पिस गरीब आवाम रही है। और जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो बढ़ते हुए रेट को कंट्रोल करे और अपने इक़दाम करे ताकि गरीब भी तमाम चीज़ें ले सके और उन्हें ज़रूरी ज़िंदगी गुजर बसर करने में आसानी रहे। कैमरामैन खुरम इमदाद के साथ फजल जावेद खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तवानाई बचत प्लान के मुताबिक ओकरा ने घरेलू सार्फिन के लिए रिवायती गैस गीजर में कोनिकल बेफल की तनसीब लाजमी करार दे दी। इस हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस की टीमें जल्द ही घर घर मुआयने का आगाज करेंगी। ओगरा ने कोनिकल बेफल की तनसीब लाजमी करार दिए जाने के गैस कंपनीज की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। गीजर में कोनिकल बेफल की तनसीब से गैस बिल में 20 से 25% तक बचत मुमकिन हो सकेगी, जिससे मुल्क में जारी गैस बहरान से निपटने में मदद मिलेगी। सुई नॉर्दर्न गैस की टीम्स जल्द ही घर घर मुआयने का आगाज करेंगी ताकि गीजर में कोनिकल बेफल की तनसीब को यकीनी बनाया जा सके। अगर किसी सारिफ के गीजर में कोनिकल बेफल ना पाया गया तो सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से गीजर में कोनिकल बेफल नस्ब किए जाएंगे। कोनिकल बेफल की कीमत गैस बिल के जरिए 12 आसान माहाना साथ में वसूल की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस ने सारिफिन से ताउन की दरख्वास्त की है ताकि कोनिकल बेफल की जल्द अज जल्द तनसीब यकीनी बनाई जा सके, जिससे सारिफिन को गैस के इस्तेमाल में बचत हो सकेगी। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तवानाई बचत के विजन के मुताबिक कुदरती गैस की बचत भी मुमकिन हो सके।
वजारत रेलवे ने माली खसारे से बचने के लिए रेलवे स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। जराए वजारत रेलवे के मुताबिक मुआशी खसारे को कम करने के लिए स्क्रैप की फरोख्त समेत अहम इकदाम पहले ही ज़ेरे गौर हैं। पहले मरहले में लाहौर और कराची के रेलवे जंक्शंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। वजारत रेलवे के मुताबिक लाहौर और कराची के अलावा बाकी जंक्शंस को भी मरहलावार शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वजारत रेलवे को रोजाना की बुनियाद पर 4.5 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत कराची में मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली पहली जदीद इलेक्ट्रिक पब्लिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पहले रूट का ऐलान कर दिया। बस टेंट हाउस से रोजाना होकर वरास्ता मॉडल कॉलोनी बलोच कॉलोनी से सी व्यू पहुंचेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले मरहले में 50 बसें चलाई जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद में मजीद इजाफा करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि ANF ने मुनशियात स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी कोशिशें नाकाम बना दी। एयरपोर्ट पर मुसाफिर की ट्राली बैग से 2 किलो 982 ग्राम आइस और 8000 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं ANF ने मुनशियात स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी कोशिशें नाकाम बना दी हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्राली बैग से 2 किलो 982 ग्राम आइस और 8000 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। और अब आपको बताएं कि ANF ने मुनशियात स्मगलिंग की बैनुल अक़वामी कोशिश को नाकाम बना दिया है। एयरपोर्ट पर मुसाफिर की ट्राली से 2 किलो 982 ग्राम आइस और 8000 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि ANF ने मुनशियात स्मगलिंग की बैनुल अक़वामी कोशिश को नाकाम बना दिया है। एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 2 किलो 982 ग्राम आइस और 8000 नशावर गोलियां बरामद कर ली हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले ANF की कार्रवाई सामने आई है। ANF ने मुनशियात स्मगलिंग की बैनुल अक़वामी कोशिशें नाकाम बना दी हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 2 किलो 982 ग्राम आइस और 8000 नशावर गोलियां बरामद कर ली। आगे बढ़े, आपको बताएं सजावल बदीन और ठट्ठा इजला में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तीनों इजला में 15,36,000 से ज्यादा वोटर्स हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रहमान अराइन का कहना था कि तीनों इजला में 1008 पोलिंग स्टेशंस को हिसास और 185 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हिसास करार दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। तीनों इजला में 1152 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और आपको बताएं कि SP इन्वेस्टिगेशन कैंट आफ्ताब पुलरवान के हुक्म पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा सलीम सिंधु की अपनी टीम के हमरा इंसानी गुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान शहरियों को वरगला कर ऑपरेशन के जरिए हुर्दे निकाल लेते थे। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि SP इन्वेस्टिगेशन कैंट आफ्ताब पुलरवान के हुक्म पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा सलीम सिंधु की अपनी टीम के हमरा इंसानी गुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान शहरियों को वरगला कर ऑपरेशन के जरिए गुर्दे निकाल लिए जाते थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, SP इन्वेस्टिगेशन कैंट आफ्ताब पुलरवान के हुक्म पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा सलीम सिंधु की अपनी टीम के हमरा इंसानी गुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान शहरियों को वरगला कर ऑपरेशन के जरिए गुर्दे निकाल लेते थे। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इतनी कानूनी हरकत करते रहे ये लोग? देखिए, अगर बात की जाए गुर्दा चोरों की, तो जिस तरह से लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार मजबूर अपने घरों से जो है वो लाहौर में नौकरी करने के लिए आए हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बहन भाइयों माँ बाप का जो पेट पालने के लिए मजदूर निकलते हैं, तो वहीं पर ऐसे लोग जो है वो उनको बरगलाते थे और नौकरी का झांसा देकर जो है वो ले जाते थे। और वो कहा जाता था कि आपका मेडिकल करवाना है और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके जो है वो गुर्दे निकाल दिए जाते थे। ये मनावा पुलिस ने कार्रवाई की है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सलीम सिंधु ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में जो है वो अमजद फैसल, यूसुफ अली, मकबूल, फैसल खान और अकबर खान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्जिमान सादालू शहरियों को
नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी और आजाद कश्मीर के इलाकों में ले जाते थे और शहरियों के गुर्दे निकालकर गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट भी करते थे, जबकि मुलजमान ने रावलपिंडी के इलाके में एक लेबोरेटरी भी बना रखी थी जहां उन्होंने दर्जनों अफराद के गुर्दे निकालकर दूसरों को लगाने का इंकशाफ भी किया है। आज जो है वो एसपी चीरफाड़ किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से क्या लगेगी इनके ऊपर दफात? जी हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है वसीम से। इस हवाले से बताते चले कि इंसानी गुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिनौना जो है काम किया जा रहा था, लोगों को ऑपरेशन के बहाने बुलाकर गुर्दे जो है वो निकाले जा रहे थे और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जबकि इन्वेस्टिगेशन करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही गिनौनी हरकत है कि मुलजमान को ऑपरेशन के बहाने बुलाकर जो है वो गुर्दे निकाले जा रहे थे और गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं काहना के इलाका में शादीशुदा खातून से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काहना इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान अब्दुल्ला, अब्बास हफीज और अब्दुल गफ्फार शामिल है। तर्जमान इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद वकास के मुताबिक मुतासरा खतून का मेडिकल करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन जुहेब नसरुल्लाह रांझा का कहना है कि ज्यादती में मुलविस मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। इन्होंने कहा कि खवातीन की जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। और पंजाब फूड अथॉरिटी की चूनिया कसूर के इलाके में कार्रवाई, वाफिर मिकदार पे मुसरे सेहत दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का स्किम्ड मिल्क तैयार करने वाले दूध माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डेयरी सेफ्टी टीमों का चूनिया कसूर के इलाका में अमानत मिल्क कलेक्शन पर छापा। 1100 लीटर जाली दूध तलब कर दिया गया। दूध ब्रादर गाड़ी सीलिंग मशीन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, केमिकल समेत 5 किलो ऑयल भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने कब्जे में ले लिया। दूध माफिया नाकस पाउडर, केमिकल और मुजरे सेहत गंदे ऑयल से दूध तैयार करते थे। डेयरी टीमों की बरवक्त कार्रवाई से जाली दूध को मौका पर तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर आज़म अली का कहना है जाली दूध बनाने वाले। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वापडा हाउस लाहौर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें वापडा फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। हंगामी हालत में वापडा हाउस बिल्डिंग से मुलाजमीन के महफूज इनखला की मशक के लिए मज़कूरा मशक में रेस्क्यू 1112 के अलावा वापडा के फायर फाइटर, सिक्योरिटी, मेडिकल और दीगर मुतल्लिका शोबों के अफराद ने हिस्सा लिया। आपको बताएं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुल रहमान के सदर पंजाब फॉर्म चौधरी नसीर अहमद भट्टा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सदर लॉयर्स फॉर्म लाहौर राना जफर इकबाल की क़ियादत में वकला के वफ्द ने मुलाकात की है। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुल रहमान से सदर पंजाब लॉयर फोरम चौधरी नसीर अहमद भुट्टा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सदर लॉयर फॉर्म लाहौर राना जफर इकबाल की क़ियादत में वकला के वफ्द ने मुलाकात की है। तफसीलात इसी हवाले से जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर से। जी शेख साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुल रहमान से सदर पंजाब लॉयर्स फोरम चौधरी नसीर अहमद भुट्टा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सदर लॉयर्स फोरम लाहौर राना जफर इकबाल की क़ियादत में वकला के वफद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने मेरे 19 दिसंबर के आईनी ऑर्डर की तमील कर दी है, जिसका स्पीकर ने लिख कर भेजा है कि आर्टिकल 7(1)30 के तहत इत्मीनान का वोट हासिल कर लिया है, जो एक आईनी और कानूनी तकाजा था, जिसके बाद मैंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर का कहना था कि माजी में गवर्नर हाउस में कायम की गई गलत मसालों के बरक्स पंजाब कबीना का फौरी हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून जमहूरी इक़्तिदार के फरोग और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मैं सूबे के आईनी सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा, जबकि कानून साजी के मामले पर गवर्नर ऑफिस ने हमेशा अवामी मफादात को मद्देनजर रखा।
गवर्नर का मजीद कहना था कि वकला बरादरी ने आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेकाम और उसकी तसलसल के लिए हमेशा नुमाया किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल शेख जाफर, ये भी बताइएगा कि इस मुलाकात में किन अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें जो अहम अमूर थे जिन पे बातचीत हुई उनमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉयल फोरम था जिनकी कुछ मुश्किलात थी और उनको डिस्कस किया गया और गवर्नर की तरफ से कहा गया कि मैं ये तमाम जो आपके मसाइल हैं इनको वजीर आजम तक पहुंचा के इसको हल करूंगा। इसके अलावा जो गवर्नर हाउस की तरफ से आईनी सूबा होने का सरबराह होने के नाते से जो काम और जो इकदाम हैं उसकी यकीनदानी कराई गई कि मैं इसके सरबराह की हैसियत से जो आईनी तकाजे हैं वो सारे पूरे करूंगा। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज हमें आगाह कर रहे थे। SHO हंजरवाल इशफाक खान की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी समेत 20 से जायद मुकदमात में मतलूब 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान में खालिद और नवीद शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 2 मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। SHO हंजरवाल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। अवामी जान और माल का तहफ्फुज अवलीन तरजीह है। फतह जंग में इस्लाही जमात तंजीम आफीन दरबार आलिया सुल्तान बाहू जिला अटक के ज़ेर एहतमाम अजीमुल शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बाहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मुरीदैन और अवाम ने शिरकत की। इस मौका पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलहाय अकीदत भी पेश किए गए हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि फतेह जंग में इस्लाही जमात तंजीमुल आरिफीन दरबार आलिया सुल्तान बाहू जिला अटक के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बाहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मुरीदैन और अवाम ने शिरकत की है। RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया राव का बगदादुल जदीद का अचानक दौरा, रिकॉर्ड रजिस्टर्स और कराइम का मुआयना किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद की इस रिपोर्ट पे। RPO बाबू मुनीर बसिया ने थाना बगदादुल जदीद का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान थाना की रिकॉर्ड रजिस्टर और क्राइम का मुआयना किया। रिकॉर्ड की तकमील न होने पर उन्होंने मुहर्रर थाना को शोकस नोटिस जारी कर दिया। थाने के फ्रंट डेस्क की पड़ताल की। थाने में मौजूद रजिस्टर है कि रोजाना की बुनियाद पर तकमील करने और तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट रखने की भी हिदायत की। RPO ने विजिट के दौरान अफसरान व एहलकारों को हिदायत दी कि थाने में आने वाले शहरियों के साथ नरमी से पेश आए, सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाया जाए। इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। खवातीन को लेडीज पुलिस ऑफिसर डील करें। थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए कि मुतासिर यहाँ आकर खुद को महफूज समझें। पुलिस का शोबा अमन और अमान का सामन है। किसी भी मुश्किल में अवाम पुलिस से भी उम्मीद रखती है। मुतासिर इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए थाना में हमारे पास आते हैं, उनको मायूस ना होने दें। अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्हें रिलीफ दें। अवाम की खिदमत और अपना फ़र्ज हसन तरीके से सर अंजाम दें। हर अफसर की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। सजा जजा का पैमाना सबके लिए बराबर होगा। किसी भी बात किसी भी थाने का विजिट कर सकता हूँ। दौरान विजिट RPO ने थाना बगदादुल जदीद में खुली कचहरी भी लगाई। खुली कचहरी में 9 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल बताए। उन्होंने लोगों के मसाइल सुनकर मौके पर यह काम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया जिला मानसहरा में तलबा को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही देने का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रसा नवाब में तरबीती सेशन का इनेकाद किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद तनोली की इस रिपोर्ट में। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रसा नवाब में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी और मानसहरा पुलिस के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सर्कल उगी जावेद खान, DSP ट्रैफिक पुलिस मुदस्सर ज़िया, SHO थाना लसनवाब सैयद तस्वीर हुसैन शाह, कॉलेज अज़ा के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक और दीगर ने शिरकत की। तलबा से खिताब करते हुए DSP सर्कल उगी जावेद खान ने कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। हर रोड यूजर को ट्रैफिक कवानीन से आगाह होना और उन पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि सड़कों पर होने वाले हादसात में होने वाले जानी व माली नुकसान से महफूज रहा जा सके। DSP ट्रैफिक मुदस्सर ज़िया ने सेमिनार में शरीक कॉलेज तलबा से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करने की वजह से हादसात रोनुमा होते हैं, जबकि ड्राइवरिंग की बाकायदा तरबियत न होना, कम उम्र ड्राइवरों की भरमार ट्रांसपोर्टर भी हादसात की एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई तादाद और कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के बायस सड़कों पर हादसात में इजाफे के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट और हेलमेट को फैशन के तौर पर नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें।
और नाजरीन आपको बताएं कि टंडू जाम रूरल हेल्थ सेंटर में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का मुफ्त चेकअप और अदवायात भी दी गई। जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। OGDCL CSR डिपार्टमेंट की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर टंडो जाम में आंखों का 3 रोजा कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिदा OGDCL के रीजनल कोऑर्डिनेटर मीर नवाब अली मिठानी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिला सुमरो, डॉक्टर एहसान जहांगीर, एडमिनिस्ट्रेटर PPHI तालिब बुगियो, कोऑर्डिनेटर फहीम लोधी, डॉक्टर अब्दुल मनान अबड़ो, मोहम्मद आतिफ ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर OGDCL के रीजनल कोऑर्डिनेटर मीर नवाब अली मिठानी ने कहा कि OGDCL CSR डिपार्टमेंट की जानिब से सिंध की आवाम को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराम करने के लिए सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में हेपाटाइटिस C और आँखों के कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजोरो फील्ड और बॉबी आयल कम्प्लेक्स में भी आँखों का मुफ्त कैंप लगाया गया था, जिसमें अवाम को आंखों का मुफ्त चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन किया गया था। इस कैंप में भी मरीजों का मायना, अद्वियात और मुफ्त ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैंप 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें अवाम को मुकम्मल रिलीफ फराम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से 16 जनवरी। अब आपको बताएं, बवाना में मटर की चुनाई का सीजन शुरू हो गया। मर्द खातीन की बड़ी तादाद खेतों में मटर चुनती नजर आने लगी। मजीद तफसीलात आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बवाना में भी मटर की काश्त की जाती है। मटर बरसगीर पाक व हिंद की मशहूर सब्जी है जो कि आसानी दस्तयाब होती है। मटर को गोश्त, आलू, कीमा में पकाएं तो खाने के जायकों को तकवीत बख्शती है। मटर में फाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो कि खून में शुगर दाखिल नहीं होने देता। मुल्क भर में मटर की चुनाई का मौसम अरूज पर है। मर्द व खवातीन खेतों में मटर की चुनाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस मौके पर मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, काश्त करके हम बड़े परेशान हैं। जो रेट है वो इंतहाई कम है। इतना तो हमारे, इससे डबल तो हमारा खर्चा है। हमारी कास्ट आ रही है 1,20,25 हज़ार का मटर जो फी एकड़ से जा रहा है, और 1.5 लाख रुपया हमारा खर्चा है। तो हमें तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपया जो है वो नुकसान हो रहा है। तो हम ये मुतालबा हुकूमत से करते हैं कि दूसरी फसलों की तरह जैसे गंदम है, गन्ना है, इस तरह कोई मटर का भी जो है वो परमानेंट जो है वो सरकारी रेट जो है वो मुकर्रर किया जाए। या क्योंकि यहाँ पे जो है मटर बहुत ज़्यादा काश होता है, एक्सपोर्ट होता है, और ये हमारी जो है मेजर क्रॉप है। अगर ऐसा ही इसके साथ होता रहा, पिछले सालों में 50,000 खर्चा था, इस मरतबा 1.5 लाख खर्चा है, और पिछले साल रेट जा रहा था 2,500, 3,000, और इस मरतबा 1.5 लाख खर्चा करके हम 1100-1200 का। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।